ओके, किधर गए बाकी सब लोग? क्यों ऑफलाइन क्यों हो गए हैं भाई? हम्म। ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, अनदर नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स। जी आवाज आ रही है आपको? प्लीज लेट मी कंफर्म, देन वी कैन स्टार्ट। Okay, is the Michael reaction. You are familiar with the Michael reaction. That is a Michael reaction. Michael reaction, another reaction of the, sorry, of carbonyl compounds, that is the Michael reaction. So what is basically Michael reaction? We also call it as a one for addition reaction. इसका दूसरा नाम क्या है? One for addition reaction. So another name is one for addition reaction of this Michael reaction. So what is basically Michael reaction? For example, if you have any carbon-carbon double bond, so let me all write this one. So any you have carbon-carbon double bond. So if it is directly attached with some electron withdrawing group, electron withdrawing mean Z mean it can be a carbonyl group, it can be a aldehydic group, Z, it can be a keto group, it can be an ester functionality, or it can be a cyano group, or it can be a nitro group. So this is known as Michael receptor. इसको क्या बोलते हैं हम? This is a Michael receptor. Carbon carbon double bond and Z. Z is electron withdrawing group. So it can react with, for example, if I write an example like CH2, then carbon carbon double bond CH, and here you have, for example, a keto group as electron withdrawing group. So this is a Michael receptor. So if you treat it with some nucleophile, if you treat it with some nucleophile, any nucleophile, so nucleophile will attack on the carbon, on this terminal carbon of double bond, and then this bond will be shifted between this carbonyl carbon and this carbon, and this bond will break in the favor of your oxygen. So nucleophile is basically, if I number this one, this is a number 1, this is a number 2, this is number 3, and this is number 4. तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली ये जो कार्बन है, जो इसको मैंने 4 नंबर दिया है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा. सो नाउ
if I write this intermediate, you will get a CH2. So nucleophile attacked on this carbon, and then you have single bond CH, and then you have double bond C, and this carbon become O negative. This become O negative, and here we have CH3. Now this oxygen will take a proton from the reaction mixture like water H2O. This will take a proton and it will become an OH. So nucleophile is attack over here. This is a CH2. This is a CH2, and then you have CH, and then you have double bond C, and this take oxygen negative takes a proton from the reaction mixture, and now it's converted into an OH, and then you have CH3. So you can see कि यहाँ पे आप दो जो एटम की एडिशन हुई है न्यूक्लियोफाइल की, ये 4 कार्बन पे हुई है, और एक एटम हाइड्रोजन जो ऐड हुआ है कार्बन नंबर 1 पे ऐड हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन आल्सो. दिस इज अ बेसिकली माइकल रिएक्शन. तो अब ये चूंकि इनोल फॉर्म है और ये सिंपल कीटोन है, तो इट विल गो इनटू अ मोर स्टेबल कीटो फॉर्म. इनोल फॉर्म इसमें ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल, then you have CH2, and then you have CH2, and then you have double bond O. तो ये प्रोटॉन जो है ये कीटो फॉर्म में चला जाएगा, प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगी टू दिस CH2, यहाँ पे प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस इज यू हैव CH3. तो ओवरऑल जो इनिशियल एडिशन हुई है न्यूक्लियोफाइल की नंबर 4 कार्बन पे और प्रोटॉन की नंबर 1 ऑक्सीजन पे 1 पोजीशन पे, तो इसको हम कहते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन है. तो ओवरऑल दिस इज अ माइकल रिएक्शन. तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास माइकल रिसेप्टर हो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो. तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल से जब आप रिएक्शन करेंगे, सो दिस विल गिव यू अ माइकल एडिशन रिएक्शन, माइकल रिएक्शन, जिसको आप 1,4 एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि यू हैव अ सिंपल कीटोन लाइक एसीटोन. जिस तरह क्या है एसीटोन है, जब आप इसको बेस से ट्रीट करेंगे, so this will give you a carbon negative. This is the source of nucleophile. And here you can see, here you have CH2 double bond CH, single bond C, double bond O, CH3. This is, you have alpha beta unsaturated ketone, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ये माइकल एक्सेप्टर होगा. और ये जो आपके पास कार्बेनाइन जनरेट हुआ है फ्रॉम कीटोन, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है. सो दिस न्यूक्लियोफाइल will attack on this carbon, and this bond will be shifted. Just a moment. So this bond will be shifted between this carbonyl carbon and this carbon, and this bond will go as a negative charge on the oxygen. Now you can see after the attack of this nucleophile at carbon number 4, you can see you will get this intermediate. Now this will pick up the proton from the reaction mixture, and you will get a final product that is a Michael product. इसको क्या कहते हैं? This is a Michael product. So this is a basically named reaction of the carbonyl compound that is known as the Michael reaction, or we also call it as a Michael addition reaction. तो यहाँ पे पहले प्रोटॉन यहाँ पे ऐड होगा ऑक्सीजन नेगेटिव पे, जो कि बाद में कीटोमराइज होके इस फॉर्म में आएगा. तो इसको हम कहते हैं, आप न्यूक्लियोफाइल 4 पोजीशन पे ऐड हुआ है और प्रोटॉन 1 पोजीशन पे ऐड हुआ है, जिसकी वजह से इस माइकल रिएक्शन को हम कहते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन. तो किसी भी रिएक्शन को अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जाए, ठीक है, तो अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं लाइक आपके पास दिस इज बीटा कीटो एस्टर है,
ठीक है, OCH3 OCH3 plus you have a carbon carbon double bond, and here you have carbon oxygen double bond, and here you have CH3। तो आप देखें कि आप इसे फौरन देख के अंदाजा लगा लें कि आपने बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आप देखें रिएक्शन रिएजेंट्स को, तो आप देखें कि यहाँ पे एक माइकल रिसेप्टर है। क्या है? माइकल रिसेप्टर है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और बेस क्या करेगा कि यहाँ पे कार्बेनाइन जनरेट करेगा जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा माइकल रिसेप्टर पे, और ओवरऑल ये एक माइकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सो दिस यू हैव टू ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इज इट फाइन? तो आप फौरन रिएजेंट को देख के पहचान सकते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। सो दिस इज अ बेसिकली माइकल रिएक्शन बिकॉज यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल, you have a Michael receptor, so overall this will go one for addition reaction, that is the Michael reaction. Now you can see here, ठीक है, आपके पास दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म जो आपको मैंने समझाया कि आपके पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, सो दिस इज अ माइकल रिसेप्टर है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पे। ठीक है, तो ये माइकल रिएक्शन होगा, इसके ऊपर क्या होगा? माइकल रिएक्शन। इज इट फाइन? कि आप देखें न्यूक्लियोफाइल नंबर 4 कार्बन पे अटैक हुआ है और प्रोटॉन जो है वो 1 पोजीशन पे ऐड हुआ है, तो ओवरऑल इसको हम कहते हैं 1 फॉर एडिशन रिएक्शन। इज इट फाइन? सो दिस इज जस्ट द मैकेनिज्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 1 फॉर एडिशन रिएक्शन हम इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी हियर you can see here, so is it visible to you कि आपके पास एक डाई एस्टर है और आपके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो ये माइकल रिसेप्टर है, बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे कार्बेनाइन बनेगा, फर्स्ट डाई एस्टर का एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल सोर्स बनेगा, क्योंकि आपके पास एक्टिव मिथाइलिन है और ये प्रोटॉन रिमूव होके आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज हमेशा याद रखें कि ये इनोलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये डीलोकलाइज हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर और फिर वो रिवर्ट बैक होके इस कार्बन के थ्रू माइकल एक्सेप्टर के ऊपर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, and this bond will break in this favor. Then you can see this nucleophile is attacked on this carbon। ठीक है, और then oxygen negative जो है आपके पास after the attack of nucleophile you will get this intermediate O negative, and then you have CH2 sorry CH, then CH2, and here this diester is basically attached। यहाँ पे आपका डाइएस्टर जो है वो अटैच हो गया, ओ आर, एंड हेयर आल्सो डबल बॉन्ड ओ एंड ओ आर। तो ये बेसिकली आपका न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन से अटैक किया आपकी इस बीटा कार्बन के ऊपर, बीटा कार्बन के ऊपर माइकल रिसेप्टर की। तो देन दिस विल पिक अ प्रोटॉन फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, ये इनोल फॉर्म में आ जाएगा, और ये इनोल फॉर्म इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है तो इमीडिएटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मोर स्टेबल कीटो फॉर्म। ठीक है, आपके पास कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल माइकल प्रोडक्ट। इज इट फाइन? जी, ये बात आपको समझ आ गई है कि किस तरह माइकल रिएक्शन।
Okay, now let's move forward. Now you can see this is a Darson reaction. This is a Darson reaction. तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि what is basically the Darson reaction. ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपके पास अल्फा हेलो एस्टर हो, अल्फा हेलो एस्टर हो, और इसको आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करें बेसिक कंडीशन के अंदर, देन यू विल गेट एन अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर. Alpha beta epoxy ester is the product. This is a named reaction of carbonyl compound that is known as the Darson reaction. So what is basically the mechanism of this reaction? Let me go back. हम इस स्लाइड पे चले जाते हैं because here we have space. होता क्या है बेसिकली ये रिएक्शन कि आपके पास एक अल्फा हेलो एस्टर है, अल्फा हेलो एस्टर है. लेट मी ड्रॉ. You have this alpha, यहाँ पे for example क्लोराइड है, यहाँ पे एक क्लोराइड है, and you have this ester, you have alpha halo ester. तो you can see this is a electron withdrawing group, carbonyl group electron withdrawing group है. तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो बड़ा एसिडिक है, इट्स एसिडिक प्रोटॉन. तो जब आप इसको बेस से ट्रीट करते हैं अंडर बेसिक कंडीशन, तो वो इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर देता है. वो क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर देगा, एंड यू विल गेट अ कार्बेनाइन ओवर हियर. यानी कि यहाँ पे अल्फा हेलो है, एस्टर है, अल्फा पोजीशन के ऊपर एक कार्बेनाइन बन जाएगा आपके पास. ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बेनाइन. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इस प्रोटॉन को बेस ने रिमूव कर दिया क्योंकि ये एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. तो ये अल्फा प्रोटॉन इज एसिडिक एनफ. तो अब जब कार्बेनाइन बन गया, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको अगर आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्ट करेंगे तो कार्बेनाइन इज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड कार्बोनल कार्बन ऑफ द कीटोन, this one is electrophilic, so this will attack basically on this electrophilic center of the carbonyl compound, and this bond will break in the favor of oxygen. So now you can see that you have an R group over here, and here you have a halogen. Sorry, I can rewrite it. Here you have O negative. ठीक है, और इस कार्बन ने अटैक किया यहाँ पे जहाँ पे हेलोजन अटैच है, हेलोजन अटैच है, एंड हियर यू हैव अदर आर ग्रुप, एंड हियर यू हैव टू आर ग्रुप ऑफ द कीटोन्स ऑफ द कीटोन. के जब इसने अटैक किया जहाँ पे हेलोजन है, इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड हियर यू हैव एस्टर फंक्शनैलिटी, एस्टर फंक्शनैलिटी OR. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो दिस विल अटैक ऑन द कार्बन हैविंग द लीविंग ग्रुप. आप हेलोजन जो है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी जहां पे हेलो है, अल्फा पोजीशन पे हेलो है. ठीक है, तो ये हेलोजन को रिमूव कर देगी, और ये इस पोजीशन के ऊपर आपके पास इपॉक्सी रिंग बन जाएगा, इपॉक्सी रिंग बन जाएगा. ठीक है, इपॉक्सी रिंग बन जाएगा, एंड हियर यू हैव R, एंड हियर यू हैव एस्टर फंक्शनैलिटी. ठीक है, हियर यू हैव एस्टर फंक्शनैलिटी. सो यू कैन सी कि ये एस्टर फंक्शनैलिटी की ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है. ठीक है, तो जब भी आप किसी भी अल्फा हेलो एस्टर को रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ बेसिक कंडीशन में, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर बनेगा. और दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. दिस इज दी एक मिनट. तो इसको हम कहते हैं डार्सन रिएक्शन है. जी, आपका क्या क्वेश्चन है? कार्बेनाइन फॉर्मेशन से आगे अगेन सुनिए. तो देखिए कि आपके पास ये एसिडिक प्रोटॉन है, बेस रिमूव करेगा तो आपके पास ये कार्बेनाइन बनेगा. कार्बेनाइन क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है. तो जब इसको आप किसी भी कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे
तो एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करके वो नेगेटिव दे देगा। ठीक है, अब आप देखें कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जहां पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसको एलिमिनेट कर देगा और अल्फा बीटा पोजीशन पे आपके पास इपॉक्सी रिंग बन जाएगा इस एस्टर के। यू स्टार्टेड विद अल्फा हेलो एस्टर, in the basic condition you treat it with a ketone and the product is alpha beta epoxy ester. So this is a named reaction that is known as the Darson reaction. Is it fine? जी जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, नाउ ये भी एक कार्बोनल कंपाउंड का रिएक्शन है जो कि जिसको हम कहते हैं दिस इज अ डार्सन रिएक्शन। देन अनदर रिएक्शन दैट इज अ रीफॉर्मास्की रिएक्शन, दैट इज अ रीफॉर्मास्की रिएक्शन। अगर आप अल्फा हेलो एस्टर को ट्रीट करें किसी भी कीटोन से जिंक की प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में, देन यू विल गेट अ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज अ बीटा पोजीशन, एस्टर की बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीफॉर्मास्की रिएक्शन। सो बेसिकली व्हाट इज दिस रिएक्शन, कि होता क्या है कि जब भी आप जिंक के साथ मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, जिंक विल बी इंसर्टेड, just a moment, zinc will be inserted between a carbon halogen bond, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान इंसर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। जिंक जो है वो 0 से +1 स्टेट में चली जाती है आफ्टर इंसर्शन। इज इट फाइन? ठीक है, तो आपके पास अब ये देखिए कि एक डाइमर टाइप बन जाता है, दोनों मॉलिक्यूल जो हैं जिनमें जिंक जो है वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के दरमियान इंसर्ट हो गया है। नाउ दिस विल फॉर्म अ डाइमराइजेशन, very stable 6-membered ring. So this 6-membered ring, now you can see this one will decompose and then you will get a zinc halogen on the oxygen. तो इसको जब आप एस्टिक हाइड्रोलाइज करेंगे, एस्टिक हाइड्रोलाइज करेंगे, so this will get a proton, this will get a proton and zinc dihalide will be eliminated and you will get a beta hydroxy ester. So this is the final product. This is the reaction of alpha halo ester. देखिए अल्फा हेलो एस्टर को अगर आप कार्बोनल कंपाउंड से, कीटोन से या एल्डिहाइड से बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर बनेगा जिसको डार्सन रिएक्शन करेंगे कहते हैं। लेकिन अगर आप अल्फा हेलो एस्टर को कीटोन से या एल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे जिंक की प्रेजेंस में और एसिडिक वर्कअप करेंगे तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जिसको हम डार्सन रिएक्शन कहते हैं, सॉरी रीफॉर्मास्की रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इज इट फाइन? जी जी, बेसिकली मैकेनिज्म यू कैन सी बोथ मैकेनिज्म आर करेक्ट, बोथ मैकेनिज्म आर करेक्ट। तो एक मैकेनिज्म आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जस्ट अ मोमेंट, कि सिंपल आफ्टर इंसर्शन, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, आफ्टर इंसर्शन लेट मी ड्रॉ, ये आपके पास अल्फा हेलो एस्टर है, जिंक की प्रेजेंस में जिंक इंसर्ट हो गया, जिंक है इंसर्ट हो गया बिटवीन द हेलोजन एंड दिस कार्बन बॉन्ड। तो अब इस कार्बन पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इनिशियली कार्बन जो है, जो इनिशियली कार्बन पार्शियली पॉजिटिव थी वो पार्शियल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ दिस कार्बन विल अटैक ऑन द कार्बोनल ग्रुप
on the carbonyl group that is aldehyde or ketone कि ये अब एक कार्बोनाइन के तौर पे एक्ट कर रही है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रही है. सो दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन and this bond will break. This bond will break and you will get R, then CO, and here you have zinc halide, and here you have double bond O, and this is OR. This is the OR. Now इसको आप जब एसिडिक वर्कअप करेंगे तो ये प्रोटोनेट होगा, ये क्या होगा, प्रोटोनेट होगा, एंड देन हाइड्रोलाइज करेंगे तो जिंक डाइहाइड रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर आ जाएगा. ठीक है. So these both mechanism are correct one. This both mechanism because 100% mechanism जो है ये intermediate isolate करके prove नहीं किया जा सकता, but both mechanism are correct. ठीक है. तो बेसिकली जिंक ऑक्सीजन पर अटैक नहीं, पहले जिंक इंसर्ट होगा बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान इंसर्ट होके आपके पास ये इंटरमीडिएट बनेगा. ठीक है. अब या तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ डाइमराइज होके स्टेबल दिस जो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, डाइमर बनेगा. ठीक है. आपके पास एक डाइमेरिक फॉर्म में आएगा, वो कार्बोनिल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है. कि जिंक को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स देगी, कोऑर्डिनेट करेगा, स्टेबल 6 मेंबर रिंग बनेगा, फिर वो एसिडिक वर्कअप के दौरान हाइड्रोलाइज होकर फाइनल प्रोडक्ट होगा. या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब जिंक इंसर्ट हो जाता है तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है कार्बोनल कार्बन के ऊपर. ठीक है. कार्बोनल कार्बन के ऊपर और फिर एसिडिक वर्कअप में हाइड्रोलाइज होकर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. सो दीज बोथ मैकेनिज्म्स आर करेक्ट. इज इट फाइन? जी. तो आई थिंक वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड. इसके बाद परकन रिएक्शन है, सिंपल है, आपने पढ़ लेना है, मैं आपको भेज दूंगा. और एक स्टोव रिएक्शन है. इसके बाद आपका एक टॉपिक रह गया है, वो एडिशन रिएक्शन है आपके एल्कीन के. तो उसकी स्लाइड्स में आपको भेज दूंगा. आप राइट फ्रॉम योर एफएससी आप एल्कीन के रिएक्शन डिफरेंट पढ़ते हैं कि जो एडिशन रिएक्शन देते हैं. ठीक है. ओजोन के साथ रिएक्शन है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, हेलोजन एसिड के साथ है. ठीक है. इज इट फाइन? तो वो आपने पढ़ लेने हैं और मुझसे डिस्कस कर लेने हैं. और आपका तमाम जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट फिनिश. तो आपका कोर्स जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है. तो आई विल सेंड यू असाइनमेंट. आपने मुझे याद करना है. आपका CR GR बहुत निकम्मे हैं. ठीक है ना. सो यस, आज चूंकि मैं ऑफिस में हूँ, आज आप लोगों के लिए हमने डेट शीट बनाई है. तो मे बी जो है ना वो सेकंड वीक ऑफ जनवरी पेपर स्टार्ट हो जाए. मे बी, अभी नॉट डिसाइडेड येट. तो अगर हो गए तो डेफिनेटली दिस इज लास्ट क्लास. ठीक है जी. जी. सॉरी मैं फॉरगेट हो गया. आपका CR एंड GR आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं. आपकी 2596 मेरे ख्याल में लैब है. ठीक है ना. डेट शीट जो है अभी अभी नहीं, वो डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह. आपको नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कीजिएगा तो आपको कोई मैं बता सकूंगा. ठीक है. इंशाल्लाह 4-5 दिनों बाद डिसाइड हो जाएगा. मीटिंग होगी उसमें डिसाइड कर लेंगे. ठीक है. और इसके अलावा आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं हु इज CR एंड GR ऑफ दिस क्लास.
जी। हेलो। जी, सी आर, सी आर और जी आर कौन है जी? ठीक है। सो जबेरिया एंड सी आर, आप एक ही ग्रुप बनाएं व्हाट्सएप, ठीक है। आप डिफरेंट बनाएं, लैब के लिए एक ग्रुप बनाएं, और फिर मैं डॉक्टर फजाना को कहूंगा कि उसको ऐड करके आप, ठीक है, तो वो आपको ऑनलाइन लैब कराएंगी व्हाट्सएप पे। और फिर जैसी यूनिवर्सिटी ओपन होगी या पेपरों में, तो आपको प्रैक्टिकली जो है हम इधर करवा देंगे। तो ऑनलाइन कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ मटेरियल लैब कोर्सेज का वो आपको करवा देंगी, ठीक है जी। इज इट क्लियर? ओके। और ये मुझे आपने कंफर्म करना है फिर, ठीक है। एंड देन आपने पढ़ना है, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना है। बेटा अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि टाइमिंग क्या होगी, वे आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, जब फाइनल डिसाइड होगा, ठीक है। ठीक है। नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी क्लोज है, कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो डिसाइड होगा तो मैं इंशाल्लाह 3-4 दिनों में बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो होपफुली, होपफुली कि हमने कुछ ना कुछ सीखा है इस कोर्स में, ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। तो इस कोर्स को आपने डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। सो आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग्स आल्सो, तो रिकॉर्डिंग की मैं आपको भेज दूंगा। कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो आगे सबको शेयर कर दे, ठीक है। तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। So I think we can say goodbye now. Maybe ऑनलाइन दोबारा हम ना कोई लेक्चर हो सके। तो सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एंड अल्लाह हाफिज, एंड देन सी यू इंशाल्लाह ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो कोर्स में, तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। सो कीप इट अलाइव टिल योर एग्जामिनेशन, और देन इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी मसले में आपको इस कोर्स में, तो आप मुझसे रब्ता किसी भी टाइम किसी भी वक्त कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। ओके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज।
बस खत्म जल्दी क्लोज करने लगे या तू ते बंद कर। हेलो